So uses of hexadecimal from chapter 1. There are two things. Why do we use hexadecimal when we have other denary and binary numbers? Why do we use hexadecimals? So this is a common question. वो पूछते हैं कि why computer programmers prefer hexadecimal over denary and binary? Why computer scientists prefer hexadecimal? So there is one reason. Let's say this is a hexadecimal number A23DC7. So A is this, 2 is this, 3 is this, D is what, 13, C is 12, and C is 12 and 7. Now you can easily see that the hexadecimal number is obviously smaller in length, easy to understand, easy to read, easy to even remember. It is less error prone, means we will commit less errors if we write numbers using hexadecimal. And it takes fairly less space than the binary number on a screen. You need to understand one thing, and that is when you basically save anything to computer saves it in binary form. But when you representing in binary form is tough. So जो reasons for using hexadecimal numbers instead of denary or binary. Number one, it takes less screen or paper space. Do not ever write that it takes less space, because whenever it is saved in binary. Binary is equivalent. So no matter you are using denary or hexa, when they are saved in binary form. So you have to tell that they take less space. जैसे अब ये hexadecimal number है और एक binary number है, they both are the same, लेकिन size और आप देखें उसकी complexity बढ़ जाती है, but it is easy to remember these. ठीक है? So it takes less screen space. Secondly, it is easy to read, write, and remember hexadecimal numbers than denary or binary. Thirdly, it is less error prone to use hex. What does it mean? When you write numbers in hexadecimal, they are quite understandable, so you commit less errors. अब जैसे ये zeros और ones हैं, आप इसके अंदर अगर लिखते हैं तो zeros और ones क्या होगा? इनमें से अगर आपने एक बिट भी आगे पीछे कर दिया तो पूरा नंबर खराब हो जाएगा. This is the first thing that you need to remember. What are the reasons for using hexadecimal numbers instead of denary or binary? Otherwise, all numbers are same. They all are the same. And then second part is, what are the use cases? Use cases for hexadecimal in our syllabus.
are four. One, HTML colors. Remember, HTML colors do not mean that you are learning either HTML or colors. The whole point over here is that there are so many million colors that we use while making HTML pages over the internet for the browsers to be, or for the websites to be seen. हर पेज पे बहुत सारे कलर्स हैं और टोटल नंबर ऑफ कलर्स जो है वो है 17 मिलियन कलर्स. आजकल जो डिवाइसेस हैं वो 17 मिलियन कलर्स पे चलती हैं. 17 मिलियन बेसिकली हम कहते हैं 2 to power 24, that is equal to 16.8 मिलियन, और इसको मिला के कहा जाता है 17 मिलियन कलर्स. जब अब किसी डिवाइस पे आप देखें कि वो 17 मिलियन कलर्स आपको शो कर रही है तो उसका मतलब है कि वो टू बी एग्जैक्ट 2 की पावर 24 शो कर रही है. सिमिलरली एक चीज आपको जो समझनी है, वो ये है कि जब नंबर ऑफ नंबर्स बढ़ता है, मतलब टोटल कलेक्शन ऑफ नंबर्स ज्यादा होती है, तो every single bit also increases, every single number is also increases in terms of bits. What does it mean? आप देखें, अगर आप 4 bits का नंबर सेव करेंगे तो आपके पास जो रेंज बनेगी वो 2 की पावर 4 बनेगी, which is 16. तो आप इसका मतलब है सबसे छोटा नंबर 0 और सबसे बड़ा नंबर 15 सेव कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन 0 से लेके 15 तक हर नंबर 4 बिट्स में लिखा जाएगा. So if it is 2 to power 32, there are 4 billion numbers, 4 GB numbers that you can represent, but each and every number from 0 till 4 billion will be occupying 32 bits. So it means when the number of numbers grow, each number in terms of bits also grow. Higher the number of bits in a number, it will become more complex to write it in binary form. यही केस है आपके पास total color show करने का. Every single color is shown using a number, and total number of bits utilized for each color is 24. So it means that 24 bits to write for every color is quite complex. And as we have just discussed, that they are not easy to read or write or remember. So it is a good idea that we use hexadecimal colors, hexadecimal numbers for colors. All right, so you can see these are what, 1, 2, 3 bytes means 24 bits, but they are written in what, hexadecimal form. तो ये बड़ा आसान होता है इनको याद रखना. FF0000 00FF00 0000FF. So this is green, red, blue, green. You can easily remember these, no issues. Okay. Now another use case is MAC address. MAC address, MAC is a device, media access control is a device that actually enables your computer, cell phone, iPad, laptop, and any other smart device to connect, to get connected over the internet or any network. So every single device has got MAC attached. There would be a separate MAC for Bluetooth, there will be a separate MAC for Wi-Fi. So this MAC enables the device to get connected over the network, whether it is local area network or it is any other network like internet. Secondly, this MAC address identifies the device over a bigger network. Every device would have its own MAC address, so device will be identified using that MAC address's ID.
So now you need to understand one thing, that each Mac enables your device to be connected over the internet. Over the internet. Now it is absolutely necessary for every single device to be identified uniquely. That means that every single MAC address has to be in a shape which is not taken by anyone else. That means that every device, every MAC address that we have in our devices should be unique all over the world. So let's say there is one household of 5 people in it. 5 लोग रहते हैं, पांचों के पास एक एक सेल फोन है, हर सेल फोन में एक ब्लूटूथ का मैक है और एक जो है वो वाईफाई का मैक है, तो 10 तो ये हो गए. फिर उस घर में आईपैड होगा, कोई टैब होगा, कोई और कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, उसके अंदर खुद भी है मैक्स. तो इसका मतलब है एक छोटे से घर में 12-15 मैक हैं, तो एक बड़े घर में कितना होगा, एक नेबरहुड में कितना होगा, एक शहर में कितना होगा, एक कंट्री में कितना होगा, एक पूरी दुनिया में कितना होगा. We need billions and billions of MAC addresses. So if we need billions and billions of MAC addresses, it means that we need so many billion MACs, and every MAC should be identified uniquely. तो इस वजह से एक मैक एड्रेस जो है वो 48 बिट्स का होता है. 48 बिट्स का मतलब हुआ 6 बाइट्स का. 6 बाइट्स 48 बिट्स, और 2 की पावर 48 इज सो बिग नंबर कि अगर आप उन 48 बिट्स को बनाएं और अगर आप एक लोकल एरिया नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आप उन बिट्स को लिख रहे हैं तो आप नहीं लिख पाएंगे. इवन इन 6 बाइट्स को लिखना हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी टफ है, लेकिन इतना टफ नहीं है जितना कि वो उसको बाइनरी फॉर्म में लिखना टफ है. तो एक मैक को हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया किसको कहते हैं, मीडिया उस जरिए को कहते हैं जिसके जरिए हम कनेक्ट होते हैं. अगर वो वायर्ड है तो वायर्ड मीडिया होता है, वायरलेस है तो वायरलेस मीडिया होता है, ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ मीडिया होता है जिसको आप लोग कहते हैं रेडियो वेव्स. ऐसे तो वाईफाई भी रेडियो वेव्स ही होता है. तो वायरलेस या वायर्ड मीडिया के ऊपर उसको कनेक्ट करना है. तो ये डिवाइस हमें उस मीडिया के एक्सेस को कंट्रोल करने में मदद देती है, सो दैट वी कुड रीड फ्रॉम दैट मीडिया एंड वी कुड राइट ओवर द मीडिया सो दैट द डेटा इज ट्रांसफर्ड. मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, लैन कार्ड या नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड या एनआईसी कार्ड या ईथरनेट कार्ड. ईथरनेट वो प्रोटोकॉल है जिसके जरिए ये इस्तेमाल किया जाता है. अब वो ईथरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है हम देखेंगे. फिलहाल तो आप लोग ये समझ लें कि ये सारे एक ही चीज के नाम है और आपके सिलेबस में ज्यादातर इसको मैक कहा जाता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर. और इसकी आईडी को यूनिक होना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसके लिए 6 बाइट्स मुख्तस किए जाते हैं. अच्छा, इन बाइट्स को जब लिखा जाता है तो हेक्स में भी लिखने के लिए बीच में कोलन लगाते हैं. देखें यहाँ पे कोलन लगे हुए, लेकिन ये कोलन सेव नहीं होते, ये सिर्फ दिखाते हुए इस्तेमाल होते हैं ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सकें नंबर को. तो ये सेव नहीं हो रहा है, ये सिर्फ दिखाए जा रहे हैं. ये जो फर्स्ट 3 बाइट्स हैं, यानी कि फर्स्ट 24 जो बिट्स हैं, ये फर्स्ट 24 बिट्स होते हैं एक मैन्युफैक्चरर की आईडी. जिस मैन्युफैक्चरर ने इसको बनाया है, जिस मैन्युफैक्चरर ने इसको बनाया है उस मैन्युफैक्चरर की आईडी. इसका मतलब है 2 to power 24, 16.8 मिलियन मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं मैक. और इसी तरीके से जो लेटर 3 बाइट्स हैं वो सीरियल होती है. मतलब जो C9B3A7 वाला मैन्युफैक्चरर होगा, उसका जो पहला कार्ड होगा उसका नंबर होगा C9B3A7 000000. दूसरा जो होगा C9B3A7 000001, C9B3A7 000002. और इस तरीके से वो चलता
16.8 मिलियन कार्ड तक पहुंचेगा, जिसका नंबर होगा C9B3A7FFFFF। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16.8 million manufacturers can produce 16.8 million cards each। ठीक है। सो मैक एड्रेसेस जो है वो बाय डिफॉल्ट जब आप कोई कंप्यूटर खरीदते हैं या कोई सेल फोन खरीदते हैं या आईपैड खरीदते हैं तो उसका पार्ट होते हैं, और कंपनी ने जो मैक एड्रेस जिस नंबर पे क्रिएट किया है वो उसी नंबर पे अवेलेबल होता है। अब अगर आप चाहें तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो एडवाइस नहीं होता जब तक कि वो प्रोफेशनल्स खुद ना करें एज पर देयर नीड। तो जो मैक एड्रेसेस हमारे पास ओरिजिनली कंपनी से आते हैं उनको हम कहते हैं यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड मैक एड्रेसेस गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। और अगर हम उसको खुद चेंज करते हैं आउट ऑफ सम नीड और आउट ऑफ सम प्लान व्हाटएवर, तो हम उस सूरत में उसको कहेंगे लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड मैक एड्रेस। ओके, locally administrated MAC address. So that is how we actually differentiate between two types of MAC addresses. तो ये है uses of hexadecimal के दो use cases, HTML colors and MAC addresses। इन दोनों cases में आपने ये realize करना है कि the number of numbers is so high that every number is basically a broad one. Broad one in terms of number of bits in it. Higher the number of number that you require, each number grows in number of bits. In 4 bits, you may have 16 numbers. In 32 bits, you may have 4 billion numbers. You have to decide it yourself that how many bits do you require as per the need. So it is directly proportional. When the number of numbers grows, each number in bits also grow. Okay. Higher the number of bits, more it becomes complex to write in binary. So it is a good idea कि हम numbers को hexadecimal में लिखें। जी हाँ, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको हर चीज याद रखनी है। अच्छा, अब आगे आपके पास थर्ड यूज केस जो कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन कोड का है। Remember, we are not learning assembly language or machine code. We are just understanding. We are trying to understand that how can these large number of memory addresses can be used while we are writing programs in assembly language. We have just finished this topic, computer architecture, और इसमें मैंने आपको बताया था कि instructions do have the addresses of their data. If instruction wants some data from the memory, that address is with the instruction. Or if the instruction want to save some data to the memory, that instruction would also have the address of that data in the computer's memory. तो जब हम low level language, assembly language या machine code में काम करते हैं, तो every other instruction should have the data address in the computer's memory. Let's say you have got 3 GB RAM. 3 GB means 3 billion. So आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी है 3 GB, उसके अंदर 3 बिलियन एड्रेसेस होंगे, 3 बिलियन एड्रेसेस, और हर एड्रेस जो है वो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 3 बिलियन नंबर्स बहुत ज्यादा है। अब आप इस एड्रेस को देखें, ये कमांड है स्टोर। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस कमांड, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरल, and it has got this address with it. Means you want to store the data in the microprocessor at this address. So this address is in hexa, which is in billions. So if you turn this hexadecimal number into binary, this would become this long. This long. It is a huge binary number. And remember, if you write several hundred instructions in low-level language, only few would not have addresses with them, but बाकी सबके पास इतने addresses होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप लो लेवल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर के मेमोरी एड्रेसेस तकरीबन हर कमांड के साथ, हर इंस्ट्रक्शन के साथ लिखने पड़ते हैं।
अगर आप उनको नहीं लिखेंगे तो आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते, और उनको अगर आप बाइनरी में लिखेंगे तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स कमिट करेंगे, और उन मिस्टेक्स से जान छुड़ाने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप एड्रेसेस को हेक्साडेसिमल में लिखें। कंप्यूटर खुद उस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा, उसमें परफेक्शन होगी, लेकिन अगर आप बाइनरी में लिखेंगे तो परफेक्शन नहीं होगी। सो इट इज प्रेफरेबल, दिस इज द थर्ड यूज केस, कि जब हम असेंबली लैंग्वेज और मशीन कोड्स लिखें तो बजाय बाइनरी या डेनरी के हम प्रेफर करें कि हम उसको हेक्साडेसिमल में लिखें। तीसरा जो यूज केस है वो है डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब ये होता है कि जब आप ऐसी कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जिसमें हम कंप्यूटर की मेमोरी को मैनिपुलेट करते हैं, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग, जैसा कि डिवाइस ड्राइवर्स की प्रोग्रामिंग, तो बहुत चांसेस होते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी में जैसे ही डेटा में कोई गड़बड़ होगी तो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। दिस इज समथिंग वेरी कॉमन। अब ये बहुत कम हुआ है, लेकिन पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स कभी कभी क्रैश कर जाते थे और एक ब्लू स्क्रीन पर निकल के आ जाती थी। इसका मतलब है कि अब आपकी मेमोरी में कोई गड़बड़ हो चुकी है और आपका कंप्यूटर हैंग हो चुका है, अब आप इसको रीस्टार्ट करेंगे। तो रीस्टार्ट करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ये कोशिश करता है कि मेमोरी में जितने भी बिट्स हैं उनको वो मेमोरी हार्ड डिस्क पे मेमोरी के बिट्स को सेव कर ले, ताकि जब आप रीबूट करें और आपका कंप्यूटर नॉर्मल कंडीशंस में आ जाए तो आप फिर उसको इवेल्युएट कर सकें। लेकिन अब आप सोचें, अगर फर्ज करें एक एड्रेस पे 1 बाइट का डाटा आप रख सकते हैं और आपके पास 3 GB रैम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर एड्रेस आपके पास 8 बिट्स हो गए। तो टोटल मिला के आपके पास 3 GB रैम में 24 बिलियन एड्रेसेस हो गए। गीगा इज टू बिलियन, मेगा इज टू मिलियन। तो अगर आपके पास 3 GB रैम है, इसका मतलब आपके पास 3 बिलियन एड्रेसेस हैं, हर बिलियन पे 8 बिट्स हैं, तो 24 बिलियन बिट्स आपके पास हैं। आप किस तरीके से 24 बिलियन, या आपके सामने 32 बिट्स हैं, ये तो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप 24 बिलियन एड्रेसेस को कैसे आप हैंडल करेंगे, बिट्स को आप कैसे हैंडल करेंगे? सो दिस इज एक्चुअली वेरी टफ। तो इसलिए बेहतर है कि हम जिस वक्त मेमोरी को सेव करें और हमारा कंप्यूटर वापस रीबूट करे, हम उसको कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल की फॉर्म में उसको पढ़ना आसान होता है। तो जब हम मेमोरी को नीचे उसको कॉपी कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं मेमोरी का इमेज हम कॉपी कर रहे हैं, और जब हम उसको कॉपी कर लेते हैं जो फाइल बनती है हेक्साडेसिमल में, उसको हम कहते हैं मेमोरी डंप। So these are 4 use cases of hexadecimal.